تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چلڈرن اسپتال بند، 400 ملازمین 5 ماہ کی تنخواہوں سے محروم، ڈیوٹی سے انکار، ایمرجنسی وارڈ آئی سی یو میں بھی علاج معالجے کی سہولت ختم، بچوں کی 17 انکیوبیٹرز پر مشتمل نرسری بھی بند کر دی گئی۔ ملازمین کا 5 مہینے کے بقایا جات فوری ادا کرنے کا مطالبہ، انتظامیہ نے کہا کہ حکومت فنڈز ریلیز کرے گی تو تنخواہیں ادا کریں گے۔ بچوں کے علاج کے لیے آنے والے شہری بغیر علاج کے واپس جانے لگے، اس حوالے سے شہریوں نے بھی کیا کہا یہ دیکھتے ہیں۔ یہ نہیں لے رہے، کہہ رہے ہیں بند ہے اور ہم بہت پریشان ہیں اور بہت دور سے آئے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا ایمرجنسی بند ہے، تو ایمرجنسی کا کیا فائدہ جب بچے دور دور سے آئیں گے اور اپنا غریب بچے دور دور سے آتے ہیں اور پریشان حال ہے ہم لوگ، تو ہمارا خیال کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ تو یہ خدا یہ کرے اس کا، تو ہم لوگ بہت پریشان ہیں اور 700-800 روپیہ بڑا کرایہ لگے آنے کا، تو یہ ہم اب کیا کریں؟ ہم کو بتا دیں گے کہاں جائیں اور اس کو فریاد کریں۔ جی، بچے کو ملیریا ہوا ہے اور ہم اپنے پاس سے جو اس کو دوائیاں لکھ کے دے رہے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی ہم نے سوچا ادھر آ کے تو اب بچے کو ٹریٹمنٹ یہاں سے شروع کروا لیں، لیکن یہاں ہے تو یہاں بند ہے، ہمیں نہیں پتا تھا یہ بند ہے، لیکن حکومت کو چاہیے کہ ایسے نہ اس طرح توجہ دے، ایسے اس کو بند نہ کرے۔ جو غریب لوگ ہیں دور دور سے آتے اور ان کے بچوں کو آئی سی یو کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ بیچارے کہاں جائیں اور کس جگہ پہ وہ جا کے اپنی فریاد سنائے۔ یہاں تو آس پاس کوئی ایسا ہاسپٹل بھی نہیں ہے کہ جو ان کو ایڈمٹ کر لے، پرائیویٹ کسی کا کوئی افورڈیبل نہیں ہے، اس کو وہ افورڈ نہیں کر سکتا، تو وہ بچہ کہاں سے ٹریٹمنٹ لے گا؟ یہ تو ویسے بھی ویلفیئر اور سب بچوں کو یہاں سے جن کو دوائیاں ملتی ہیں اچھا ہے، ہاسپٹل بہت اچھا، ڈاکٹر بھی بہت اچھے، لیکن ڈاکٹروں کو بھی تعاون کرنا چاہیے۔ یہاں جو یہ حال چل رہا ہے اس سے بچوں پہ اور بڑوں پہ بہت اثر ہے۔ جو غریب لوگ ہیں وہ تو بالکل اس کے دباؤ میں بہت پریشان ہیں اور کہیں اور دور جا بھی نہیں سکتے، وہ بیچارے کدھر جائیں؟ کرایہ لگا ہے اور ابھی واپس بھی ہمیں جانا ہے، دور سے ہم آئے اور اب یہ حال ہے، اب ہم کہاں جائیں؟ کس کو فریاد سنائے جا کے کہ ہماری ہیلپ کی جائے، ہمارے بچوں کے بارے میں سوچا جائے، اور غریب عوام کے لیے یہی کچھ سہولت تھی وہ بھی بند ہو گئی، تو اب کیا ہوگا؟ ناظرین، کراچی میں 540 خطرناک عمارتوں کے خلاف بڑا آپریشن شروع، آگرہ تاج کالونی لیاری میں 2 خستہ حال عمارتیں مسمار، عمارت کو ضلع انتظامیہ کی جانب سے خالی کرایا گیا تھا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی تابڑ توڑ کارروائیاں جاری ہیں۔ ایس پی سی اے کا کراچی میں خطرناک عمارتوں کے انہدام کا عمل شروع، وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی ہدایت پر ایس پی سی اے کا خطرناک عمارتوں کے خلاف بڑا ایکشن۔ ڈائریکٹر جنرل ایس پی سی اے مزمل حسین حالی پوٹو کے مطابق کراچی میں مجموعی طور پر 540 عمارتوں کو خطرناک قرار دیا گیا۔ خطرناک عمارتوں میں سے 59 کو خالی کرایا جا چکا ہے۔ انہدام کا عمل مرحلہ وار مکمل کیا جائے گا۔ ایس پی سی اے نے عوام سے اپیل کی ہے کہ خطرناک عمارتوں کی نشاندہی ہیلپ لائن پر کریں۔ اس حوالے سے ڈائریکٹر ڈیمولیشن ریحان خان نے بھی گفتگو کی۔ یہ لیاری کی 2 بلڈنگیں ہیں جن کو ابھی ہمیں جو ڈینجرس ہیں بلڈنگیں ابھی ہم نے شروع کر دیا، اس پہ بھی شروع کر دیا اور آگرہ تاج پہ بھی ہم نے شروع کر دیا، اس پہ ہے۔ اور یہ ڈیمولیشن ہمارے ڈینجرس بلڈنگ ہیں، انہوں نے ڈکلیئر کر دیا یہ ڈینجرس ہیں۔ 106 بلڈنگیں لیاری کی جن کے اوپر کہا گیا، اور اس میں ہمارے منسٹر صاحب ڈی جی صاحب انہوں نے سختی سے کہا ہوا ہے جو ڈینجرس ہیں کسی کی جان ضائع نہ ہو، جان لوگوں کو نکالا جائے، یہاں سے نکال کے اور ڈیمولیش کیا جائے اس کو۔ یہ کام شروع ہو گیا اور تیزی سے کر رہے ہیں اس کو، ابھی آج سے شروع کیا ہے، 2 بلڈنگیں تو شروع ہو گئی ہیں۔ کھیل کے میدان، پاک کی زمین پر گاڑیوں کے شو روم، سندھ ہائی کورٹ کا ایس پی سی اے کو رفاہی پلاٹس کو محفوظ بنانے کا حکم، ریمارکس دیے رفاہی پلاٹس کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ سندھ ہائی کورٹ پر M9 موٹر وے کوئٹہ ٹاؤن میں رفاہی پلاٹس پر تجاوزات کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ سوسائٹی کے کھیل کے میدان اور پاک کی زمین پر گاڑیوں کے شو روم بنا دیے گئے ہیں، رفاہی اراضی پر کمرشل سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہیں، جبکہ ایس پی سی اے حکام نے کہا کہ سوسائٹی کا لے آؤٹ پلان منسوخ کر دیا گیا ہے۔ پرانے لے آؤٹ پلان کے مطابق رفاہی پلاٹس کو محفوظ بنایا جائے گا۔ تجاوزات کے خاتمے کے لیے اینٹی انکروچمنٹ حکام اور ریونیو حکام کو ہدایات جاری کی جائیں۔ کیا پلاٹ سے متعلق کوئی حکم امتناع موجود ہے؟ عدالت کا استفسار۔ وکیل درخواست گزار نے جواب دیا کہ سول عدالت کی جانب سے کوئی عبوری حکم نامہ موجود نہیں ہے۔ رفاہی پلاٹس میں کمرشل سرگرمیوں پر پابندی، میئر کراچی نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ نے گزشتہ ماہ پارکس کا کمرشل استعمال غیر قانونی قرار دیا تھا۔
KMC के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मुआहिदों को भी गैर कानूनी करार दिया गया था। हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर और 9 टाउन चेयरमैनों की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया था। दरख्वास्त में कहा गया था कि सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाए। दरख्वास्त में अपोजिशन लीडर सिटी काउंसिल सैफुद्दीन एडवोकेट और जमात इस्लामी के 9 टाउन चेयरमैनों को फरीक बनाया गया। अगस्त में अपोजिशन लीडर और 9 टाउन चेयरमैनों ने पार्कों के कमर्शियल इस्तेमाल के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुतादिद टाउन्स ने इन कमर्शियल सरगर्मियों पर पाबंदी आयद करते हुए मुख्तलिफ पार्क में सरगर्मियों के खिलाफ नोटिस भी जारी किए थे। ताहाल हाई कोर्ट के फैसले में मौजूद बल्दिया उस्मा कराची के मातहत शहर के 9 बड़े पार्कों में कमर्शियल सरगर्मियां अब भी जारी हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि अफगान बस्ती को मस्मार करने के लिए हैंड ग्रेनेड ऑपरेशन मुकम्मल। दूसरे रोज हैवी मशीनरी की मदद से तकरीबन 200 से ज़ायद घरों और दुकानों को मस्मार किया गया। पुलिस ने एहतजाज के लिए लोगों को उकसाने पर एक शख्स को हिरासत में भी लिया। तीसरे रोज ऑपरेशन का आगाज फिर होगा। उसामा मलिक की रिपोर्ट। अफगान कैंप में ऑपरेशन का दूसरा रोज मुकम्मल। हैवी मशीनरी की मदद से तकरीबन 200 से जायद घरों और दुकानों को मस्मार किया गया। कशीदा सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद रहे। MDA के डायरेक्टर लैंड फारूक बुगटी का कहना था कि तकरीबन 200 एकड़ से जायद अराजी वागजार करवाया है। जो अफगानी चले गए थे उनके घरों को मस्मार किया गया। बाकी लोग भी जा रहे हैं। ये रिपेट्रिएट हो रहे हैं और यहाँ से अफगानिस्तान जा रहे हैं। आपके सामने है कि ये डेली अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे, कल भी मुसलसल ट्रकों में भर के अपना सामान ये वापस अपने मुल्क जा रहे हैं। ये स्टेट पॉलिसी है, रियासत की पॉलिसी है और इनको कहीं यहाँ पे तो कोई परमिशन नहीं है कि यहाँ पे कहीं और जगह जाके ये सेटल हो। अफगान कैंप से मुतसिल गोटों के वकील ने शिकवा किया कि उनके गोटों में भी लोग रात के वक्त घुस रहे हैं और घरों पर कब्जा किया जा रहा है। हुकूमत ताउन फराम करें। वक्तन फवक्तन इधर आबाद हैं। तकरीबन 25 से 30 साल, 25 नहीं बल्कि 18-17 साल हमारे इधर हो रहे हैं मेरे। अभी बाकी इस ऐसे भी लोग हैं हमारे हम में कि वो तकरीबन इससे पहले आए हुए हैं, 25-22 साल से पहले। 5-6 दिन हो गए हम दिन रात जो है चौकीदारी करते। जिस तरह में बताया जाड़ियों से हमने गलियां बंद की है, सब कुछ बंद किया है, इसलिए ताकि हमारी हिफाजत हो जाए, हमारी सेफ्टी हो जाए। ये बात बड़ों तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि भाई हमारी हिफाजत आप कर दीजिए। ऑपरेशन के दूसरे रोज किसी किस्म की मज़ामत का सामना नहीं करना पड़ता। पुलिस ने एहतजाज के लिए उकसाने के इल्जाम में एक शख्स को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुल्तकिन कर दिया। तीसरे रोज अराजी वागजार करवाने के लिए एक बार फिर ऑपरेशन का आगाज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात आसमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान मार लिया। हामिद खान ग्रुप नायब सदर सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्तों पर कामयाब रहा। कराची के पोलिंग स्टेशन वकला का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। मजीद इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट बार सालाना इंतखाबात में कराची के पोलिंग स्टेशन से आसमा जहांगीर ग्रुप ने सदर, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी की नशिस्तों पर बढ़तरी हासिल कर ली। कराची में आसमा जहांगीर ग्रुप के हारून रशीद ने 195 वोट लेकर पहले नंबर पर। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर आसमा जहांगीर ग्रुप के जाहिद असलम ने 193 वोट लेकर मैदान मार दिया। नायब सदर सिंध की नशिस्त पर हामिद खान ग्रुप के खुशहाल खान ने 208 वोट लिए। एडिशनल सेक्रेटरी की नशिस्त के लिए आसमा जहांगीर ग्रुप के सरदार तारिक ने 215 वोट लेकर पहले नंबर पे हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी की नशिस्त पर आसमा जहांगीर ग्रुप की सायरा खालिद 190 वोट लेकर कामयाबी समेटी, जबकि हामिद खान ग्रुप नायब सदर सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्तों पर कामयाब रहा। सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन के सिलसिले में कराची के पोलिंग स्टेशन पर नताइज आने के साथ ही जश्न का समा रहा। वकला ने भंगड़े डाले और सीनियर्स को हार पहनाए। वकला ने कहा कि इंडिपेंडेंट ग्रुप की कामयाबी आइन की कामयाबी है। हम कांग्रेचुलेशन करते हैं और थैंक्स करते हैं अपने वकला भाइयों का, बहनों का, जिन्होंने इंडिपेंडेंट लायर ग्रुप को वोट देकर पूरे पाकिस्तान में कामयाब किया है। और इंडिपेंडेंट ग्रुप ने आज पूरे पाकिस्तान में ये मैसेज दे दिया कि इंडिपेंडेंट ग्रुप जो कहता है वो करता भी है, वेलफेयर का काम भी करता है, आइन की बालादस्ती पे भी बिलीव करता है, कानून की बालादस्ती पे भी यकीन करता है और जमहूरियत पे भी यकीन रखता है। और इंशाल्लाह ताला वो काम जो है, चाहे वो सोसाइटी के हवाले से हो या वेलफेयर ऑफ बार के हवाले से हो या डेमोक्रेसी के हवाले से हो, ये काम इंशाल्लाह ताला आप कंटिन्यू पाया तकमील तक पहुंचेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन में मजमूई तौर पर 385 वकला ने वोट कास्ट किए गए, जबकि इंतखाबी अमल में रिटर्न अफसर की जिम्मेदारी सिंध बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन शफकत रहीम राजपूत ने अदा की। कैमरामैन टीम के हमरा मुमताज जमाली, सिटी 21। 2-4 नहीं 18 घंटे बिजली की बंदिश। कोरंगी नंबर 4 FP एरिया के मकीन परेशान हैं। शिकवा किया, भारी बिल आ जाते हैं मगर बिजली नहीं आती कि इलेक्ट्रिक मरबूत हिकमत अमली बनाए।
इस पर शहरियों ने गुफ्तगू की, क्या कहा ये जानते हैं। बिजली तो ना होने के बराबर है। बिजली 16 से 18 घंटे बिजली मौजूद ही नहीं होती है। अगर बिजली रात को मौजूद होती है तो 2 बजे के बाद सुबह 7 बजे तक मौजूद होती है और बाकी तो दिन में आग मचोली खेलती है। बिजली बिल्कुल गायब है। तो इससे बच्चे पढ़ने वाले और कारोबारी सब डिस्टर्ब है। ये पूरा इलाका ही डिस्टर्ब है। और अगर पीछे की तरफ देखा जाए तो वहाँ लोड शेडिंग ही नहीं है। तो यहाँ का भी सब बिल टैक्स पेयर है, सब बिल भरते हैं, सारे मामलात है, लेकिन यहाँ बिजली 16 से 18 घंटे होती ही नहीं है। बिजली नहीं आती, बिल आते रहते हैं, इस वजह से भाई बड़ी परेशानी चल रही है। दरखास्त देने से कोई फायदा नहीं है ना, असल में कोई सुनवाई नहीं है। जब अपनी मनमानी कर रहे हैं तो वहाँ क्या दरखास्त दें, क्या उनको भी मालूम है। ये पहली मरतबा मीडिया पे नहीं, हजारों मरतबा ये मीडिया पे चल चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पर 16 घंटे 18 घंटे तक बिजली होती नहीं है, और जब वहाँ पे जाके कंप्लेन कराते हैं या बोलते हैं उनको तो वहाँ कोई सुनाई नहीं है। सर बात ये है कि यहाँ पर जो है बिजली के कम से कम बिल 4-4 लाख रुपए के बिल उन्होंने भेज दिया। हम लोगों ने बिजली का बिल कटवा दिए, जनरेटर खरीद के लिए आए, वो इस्तेमाल करें बच्चों की वजह से। क्या करेंगे फिर हम, जब बिल इतने आएंगे तो कहाँ से भरेंगे? हमने तो बिजली कटवा। कोरंगी नंबर 4 में के इलेक्ट्रिक के नादहिंदगान पर वाजिबुल अदा रकम 20 करोड़ रुपए से तजावुज कर गई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने मकीनों से बिजली के बिलों की अदायगी का मुतालबा कर दिया। कोरंगी नंबर 4 के नादहिंदगान पर वाजिबुल अदा रकम 20 करोड़ रुपए से तजावुज कर चुकी है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिजली का दौरानिया इलाके में होने वाली बिजली चोरी और नुकसानात की शरह पर मुनहसर है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने इस बात पर जोर दिया कि इलाका मकीन वक्त पर बिजली के बिलों की अदायगी को यकीनी बनाएं। वक्त पर की गई अदायगियां इलाके की लोड शेडिंग में कमी या खात्मे का अहम जुज़्व हैं। कराची एयरपोर्ट के अतराफ परिंदों की भरमार ने फजाई ऑपरेशन को खतरे में डाल दिया, लेकिन कप्तान की हाजिर दिमागी ने एक बड़े हादसे को टाल दिया। निजी एयरलाइन की परवाज कोयटा से कराची आ रही थी कि लैंडिंग से कबल कप्तान ने फजा में परिंदों की गैर मामूली मौजूदगी देखी। कप्तान ने फौरी तौर पर कंट्रोल टावर से राब्ता किया। टावर ने कप्तान को दोबारा फजा में चक्कर लगाने की हिदायत की। एयरपोर्ट इंतजामिया ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए बर्ड शूटर्स के जरिए रनवे के अतराफ से परिंदों को हटाया। एरिया क्लियर होने के बाद कप्तान ने तैयारे को कराची एयरपोर्ट पर बाहिफाजत उतार लिया। ज़राए के मुताबिक गैर मुस्तहकम अप्रोच के बाइस भी कप्तान ने मुहतात फैसला करते हुए लैंडिंग मुअख्खर की। कमिश्नर कराची की शिकायत पर सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की बड़ी कार्रवाई। पोलियो टीमों से अदम ताउन और ड्यूटी से गैर हाजिरी पर 42 अफसरान और अहलकारों को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए। नोटिस 13 और 14 अक्टूबर की पोलियो मुहिम के दौरान गैर हाजिरी पर जारी किए गए। बोर्ड ने अफसरान और मुलाजमीन को 3 दिन में वजाहत जमा कराने और फौरी तौर पर मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर को रिपोर्ट करने की हिदायत की। ज़राए के मुताबिक पोलियो टीमों को सपोर्ट न करने पर END रूल के तहत तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। इजहार वजह का नोटिस डायरेक्टर टू SLGB के दस्तखत से जारी किया गया। कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स इन्फोर्समेंट कराची की कार्रवाई। 3500 किलोग्राम स्मगल शुदा छालियां कब्जे में ले ली गई। हुक्काम के मुताबिक मुसद्दिका इतलात की बुनियाद पर सुपर हाईवे चेक पोस्ट पर 6 व्हीलर फोर्ड ट्रक को रोका गया। ट्रक की जांच के दौरान स्मगल शुदा छालिया के 350 बैग बरामद हुए। बरामद होने वाली स्मगल छालियां 3500 किलोग्राम पाई गई। ट्रक समेत जब्त शुदा स्मगल छालियां की मालियत 1 करोड़ 25 लाख रुपए है। कस्टम्स इन्फोर्समेंट कराची ने 3 माह में मुख्तलिफ मौक़ों पर 100 टन से ज़ायद छालियां जब्त की। 3 माह में कार्रवाई में 13 करोड़ रुपए मालियत की 100 टन छालियां जब्त की जा चुकी। मानसून बारिशों के दौरान गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर के करीब मिशाल ली रोड सीवरेज के पानी में डूबा रहा, जबकि सड़क के अतराफ कचरे के ढेर जमा हो गए। ताहम सिटी 21 की निशानदही के बाद इंतजामिया ने एक्शन ले लिया, सीवरेज निजाम दुरुस्त किया और कचरे के डंपिंग पॉइंट को साफ कर दिया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। सिटी 21 की निशानदही पर इंतजामिया का एक्शन, सीवरेज और कचरे का मसला हल कर दिया। जुबली क्लॉथ मार्केट से रामसामी तक मिशाल ली रोड पर गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर, सिंध पुलिस अस्पताल और मुतादिद तिजारती और रिहायशी इमारतें कायम हैं, जहां मानसून बारिशों के बाद नकासियाब निजाम मुकम्मल तौर पर दरहम भरम हो गया था। सीवरेज का पानी जमा होने से न सिर्फ शहरियों को मुश्किलात का सामना था, बल्कि कचरे के डंपिंग पॉइंट से कचरा उठाने का अमल भी मुअत्तल था। ताहम सिटी 21 की निशानदही पर इंतजामिया हरकत में आई, सीवरेज निजाम दुरुस्त किया गया और कचरा उठाने का अमल दोबारा शुरू कर दिया गया। सफाई अमले ने बताया कि यहाँ का डंपिंग पॉइंट साफ कर दिया गया और अब बाकायदगी से सफाई की जाएगी ताकि मसला दोबारा ना हो। सफाई हो रहा है, कचरा उठा रहे भाई, पहले यहाँ गटर के पानी वगैरह निकल रहा होता था,
अभी नहीं है, अभी सारा माशाल्लाह कचरा सफाई हो रहा है, कचरा होता है। शहरियों ने सुख का सांस तो लिया, मगर साथ ये मुतालबा भी किया कि बारिशों से उधड़ी हुई सड़कें और गलियां भी फौरी तौर पर दुरुस्त की जाएं ताकि उन्हें मुकम्मल रिलीफ मिल सके। अभी ये कचरे वचरे का रोड वोड सारे टूटे हैं, गलियां सब टूटी हुई हैं, चलना गाड़ी अंदर लेके जाना है, एक ऐसे उछलती है गाड़ियाँ जैसे पहाड़ों में चला रहे हैं। जुबली ता रामसामी निस्तर रोड को मुस्तकिल क्लियर रखने के लिए ये जरूरी है कि मैन होल्स की बाकायदा सफाई की जाए ताकि नकासी आब का निज़ाम दोबारा मुतासिर ना हो। कैमरामैन इमरान एके के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। वज़ीर-ए-आला सिंध से ईरान के नए काउंसलर जनरल की मुलाकात। कराची में ईरानी सरमायाकारी बढ़ाने पर इतफाक हो गया। नए ईरानी काउंसलर जनरल अकबर ईसाज़ादा को वज़ीर-ए-आला ने आमद पर खुशामदीद कहा और नए ओहदे के लिए मुबारकबाद दी। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि ईरान एक बरादर मुस्लिम मुल्क है जिसके साथ तारीखी और मजबूत ताल्लुकात हैं। अकबर ईसाज़ादा ने साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर ताज़ियत की। दोनों रहनुमाओं ने ईरान और पाकिस्तान खुसूसन कराची के दरमियान तजारती हजम को 5 अरब रुपए से बढ़ाकर 10 अरब रुपए करने पर इतफाक किया। इसके अलावा कराची से तेहरान के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों के आगाज़ पर भी बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि ऐसी परवाज़ें ज़ायरीन के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। सिटी 21 पर खबर नशर होने के बाद कुरंगी पुलिस हरकत में आ गई। कॉजवे पुलिस चौकी को दोबारा फाल कर दिया गया। 2 रोज़ कबल सिटी 21 ने पुलिस चौकी को ताले लगने की खबर नशर की थी, जिसके बाद SSP कुरंगी तारिक नवाज ने नोटिस लेते हुए चौकी को फाल करके नफरी तैनात कर दी। पुलिस चौकी बंद होने से कॉजवे पर लूटमार की वारदातें बढ़ गई थी। वारदातों के बायस शहरियों को परेशानी का सामना था। SSP तारिक नवाज के मुताबिक कुरंगी पुलिस चौकी को दोबारा बनाया जा रहा है। SSP के मुताबिक हाईवे पेट्रोल पुलिस को भी यहाँ मौजूद रखा गया है। महमूदाबाद में फायरिंग से एक शख्स के जख्मी होने का वाकया। शदीद जख्मी शख्स की शनाख्त आमिर हयात के नाम से हुई। आमिर के भाई डॉक्टर आसिम की सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू। वाक़े की CCTV सिटी 21 ने हासिल कर ली। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक महमूदाबाद में फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। जख्मी की शनाख्त आमिर हयात के नाम से हुई। आमिर के भाई ने सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि भाई बैंक से नकदी लेकर घर आ रहा था कि एक बाइक पर सवार 2 मुल्ज़िमान ने पीछा किया। घर के करीब पैसे लूटने की कोशिश की। अपने बचाव में भाई ने मुल्ज़िमान पर फायर खोल दिया। मुज़ाहमत पर भाई की टांग में गोली लग गई, जिससे तिबी इमदाद के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट और दीगर अदालतों में केसेस के समाअत और फैसलों के हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। मोटरवे M9 कोयटा टाउन में रफाही प्लॉट्स पर तजावुज़ात के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने SBCA को रफाही प्लॉट्स को महफूज बनाने का हुक्म दे दिया। दौरान डकैती बच्चों के सामने उनके वालिद को कत्ल करने का केस। गरबी की अदालत ने मुल्जिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। नॉर्थ नाज़ाबाद में असले के जोर पर शहरी से वारदात का केस। वस्ती की अदालत ने मुल्जिमान की दरखास्त जमानत पर फैसला सुना दिया। अदालत ने मुल्जिमान को फी कस 50,000 रुपए की जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने गवाहान के वारंट जारी करते हुए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। कारोबारी हवाले से खबर यह है कि स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स 1241 पॉइंट्स कमी से 1,64,444 की सतह पर बंद हुआ। काविश मेमन की रिपोर्ट। स्टॉक मार्केट जुमेरात को मंदी पर इख्तिताम पजीर हुई। 100 इंडेक्स 1,241 पॉइंट्स की कमी से 1,64,444 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स ने बुलंद तरीन सतह 1,66,864 को छुआ। माहिरीन का कहना है कि स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद सरमायाकारों का एतमाद जुज़वी तौर पर बहाल जरूर हुआ है, ताहम मुनाफे के हुसूल और आलमी माशी दबाव के बाइस मार्केट में उतार चढ़ाव बरकरार है। तजिया कारों के मुताबिक कलील मुद्दती सरमायाकार मोहतात रवैया इख्तियार किए हुए हैं, जबकि तवीलुल मुद्दती सरमायाकार मुस्तकबिल की पॉलिसियों के वाज़े होने के मुंतजिर हैं। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ काविश मेमन, सिटी 21। आलमी और मुकामी मार्केट में सोना मजीद महंगा हो गया। आलमी मार्केट में सोना $19 महंगा होकर $4,217 फी औंस की बुलंद सतह पर पहुंच गया। 1 तोला सोना $1,900 बढ़कर $4,42,800 पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना $1,629 महंगा होकर $3,79,629 का हो गया। 1 तोला चांदी $5,337 की बुलंद सतह पर बरकरार है।